आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छूले आपका मन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है खेल की बात रेडियो टशन के साथ। इस कार्यक्रम के किसी भी हिस्से में आपसे क्रिकेट पर आधारित एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका कमेंट बॉक्स में आप सही उत्तर दे सकते हैं। सही उत्तर देने वाले को हमारी ओर से आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। धन्यवाद। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। We witness a fantastic program in few days as far as viewers are concerned. So thank you very much for all your support. Now once again welcome back to your favorite program, that is Khel Ki Baat Radio Tashan ke sath. You people are giving great support, some emotions, love, receiving messages which is pretty emotional, which is pretty motivated as we are heading to another program. So if we talk about what happened in these days when we were not able to produce any kind of show for you guys, but now we are back with a special show for the series between India versus New Zealand, which is going on in New Zealand in 3 T20s and 3 ODIs. So let's talk about the first match of the T20 series, which was completely washed out with no toss. So if no toss, there can be no ball as well. And now it was the turn of a second match of the tournament, of the series, whatever you want to say, it's totally up to you. It was New Zealand who won the toss, decided to bowl first, and India have taken full advantage of that decision. Yes, they got so start, not as we were expecting, that Indian will change the tempo of playing or template of play. Didn't happen. Everything was going as slow as possible. 6 overs. In 6 overs, I think India were batting on 49, something like that, if I'm not wrong. जी, मुझे लगता है. And before we start, it will be fair to welcome you on the show, man. तो देखो, विश्व कप से हम बाहर हुए सेमीफाइनल हारने के बाद. उसके बाद हमने क्या कहा कि जी हम टेम्पलेट अपना बदलेंगे. 2 मैच हुए अब तक, इसमें से पहला मैच रद्द हो गया, तो एक मैच के बाद हम कुछ खास कह नहीं सकते, क्योंकि एक आध मैच लगते हैं आपको शेल से बाहर आने में, जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हो, वो भी सेमीफाइनल जैसे मैच में, और इतनी जबरदस्त हार के बाद. शर्मनाक मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि ये क्रिकेट में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए नहीं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि क्रिकेट जब टीमें खेलती है ना, या कोई भी खेल, तो वो जीतने के लिए खेलती हैं, ना कि हारने के लिए. तो यदि कोई टीम हार जाती है, हाँ आप कह सकते हैं बुरी तरीके से हरा दिया, लेकिन मीडिया ने बड़ा जबरदस्त हाइक बना के रखा था कि जी बड़ी शर्मनाक हार भारत की हुई है, वो बहुत सारी चीजें, जिससे कम से कम मैं इत्तेफाक नहीं रखता. उसके बाद दूसरा मैच आपने देखा, उसका रिजल्ट आप सबको पता है क्या हुआ. अ फैंटास्टिक नॉक अगेन बाय सूर्य कुमार यादव, SKY, दैट इज नोन एज स्काई ऑफ इंडिया. ही इज ट्राइंग टू पुट इंडिया ऑन स्काई फ्रॉम द अर्थ. Will India be able to retain Surya Kumar Yadav, or will Surya Kumar be able to retain his form? That is a billion-dollar question. But again, till now or till date, he is doing an excellent job for Indian team as a, what I can say, pillar of Indian cricket team right now. If we exclude Surya Kumar Yadav from the team, India is not looking a great team without him. The way he performed, the way he played for India in a year or so, we cannot compare anybody, but little bit of what I can say, shadow of A.V. de Villiers. A.V. de Villiers is a great player, 360-degree player. Nobody will forget the innings which he played in his career, and Surya Kumar Yadav is trying to go on the same way, but better than him. So it was New Zealand who won the toss and decided to bowl fast. India didn't start the way we were expected, the way
we were expecting, sorry, but cautious start, I can say. Not a hard-hitting kind of things. Ishant Kishan, Rishabh Pant, two openers came out to bat for India very first time, I think, if I'm not wrong, or might have done once in a year as well. It's totally up to the records. We are not really confirmed. So Pant, I don't think was getting any kind of move from his bat. He was just playing an anchor role, which I don't think is a good sign actually. If you are being sent as an opener, you'll have to play some blistering inning. Nevertheless, तो अब आप बताओ मेरे को, हम सारी बातें बाद में कर लेंगे, पहले यही बात कर लेते हैं कि क्या ईशान किशन और ऋषभ पंत से ओपनिंग को लेकर जो आपके मन में कोई सवाल उठ रहे हैं? जी, जरा आप सवाल दोबारा दोहराएं। मैंने कहा ऋषभ पंत और ईशांत किशन ने ओपनिंग की, इस राय पर या इस फैसले पर आपकी कोई प्रतिक्रिया या आपके मन में कोई सवाल? सवाल बार बार यही उठता है कि ऋषभ पंत की तमाम पारियां पिछली रही, एकमात्र अर्ध शतक को अगर हम छोड़ दें तो मुझे लगता है कोई खास रही नहीं, और अब समय आ गया है। संजू सैमसन भी लाइन में हैं, हमें उनको मौके देने चाहिए। और मुझे लगता है जो हमने पहले देखा कि रोहित शर्मा 5 पे खेलते थे और आज पारी का प्रारंभ कर रहे हैं, यही हम पैटर्न सबके साथ हम करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है जो कि संभव नहीं है। और मुझे लगता है ये जब शुभमन गिल बाहर हैं, या तो आप उनको चांस दें, और या फिर मुझे लगता है या फिर आप जा सकते हैं। दीपक हुड्डा नया टैलेंट है, 4 विकेट लिए, आगे बात होगी उन पे। और मुझे भी लगता है कि सैमसन से भी आप पारी की शुरुआत करा सकते हैं, और सूर्य कुमार यादव भी ओपन कर सकते हैं। बाकी ऋषभ पंत के बारे में क्या ज्यादा बात की जाए, ऋषभ पंत मुझे ठीक नहीं लगा कि ऋषभ पंत से पारी की शुरुआत कराई। वो 6 नंबर पे ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बैटिंग कर सकते हैं, या 4 पे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को बनाए रखने के लिए वो टीम में बैलेंस दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पारी की शुरुआत कराना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है अभी। And we will not talk about Surya Kumar Yadav much because he is in a brilliant touch, as I earlier said. He's doing all his best, whatever he can produce for India. Late comers in Indian cricket have been seen, number of players, history of the players who have been late comers in world cricket, but they have printed their mark on the cricketing history. Same thing is happening with Surya Kumar Yadav as well. देखो एक चीज जो मेरी समझ में आई, आप पता नहीं इत्तेफाक रखो नहीं रखो, शायद भारत ना विश्व कप हारने के बाद कुछ ऐसे फैसले जरूर ले रहा है जो मुझे लगता है विश्वास में कम, जल्दबाजी में ज्यादा लिए जा रहे हैं। आप ऋषभ पंत वाला फैसला देख लीजिए, ठीक है, ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन, नो डाउट अबाउट इट, ही इज हैविंग लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, लॉट्स ऑफ टैलेंट, लॉट्स ऑफ एबिलिटी, बट इट डजंट मीन्स कि आप किसी बैट्समैन को भी उठा के कहीं रख दो। Whatever he is made for, हाँ, अब कई लोग ये भी कह देंगे जी आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि सहवाग तो पहले 6 नंबर पे खेलता था, उसने ओपनिंग की, सचिन भी पहले नीचे थे, ओपनिंग की। यस, इट्स ऑल राइट, ये पैटर्न चला रहा भारत में। अगर आपने गौर किया, रोहित शर्मा के बारे में आपने बात की अभी कि रोहित शर्मा पहले 5-6 पे खेलते थे, वो ऊपर आए, तो ये सबके साथ कमोबेश होता आया है। और राहुल को ले लीजिए आप, राहुल भी वो पहले बीच में खेलते थे, फिर ओपनिंग पे गए, फिर बीच में गए, तो ये ना रस्साकसी जो है ये चलती रहती है भारतीय क्रिकेट में। खैर, थोड़ा सा इससे आगे बढ़े हम, तो मुझे लगता है दीपक हुड्डा इज अ गुड टैलेंट, नो डाउट अबाउट इट, इज अ यंग ब्लड, he is doing all the hard works, whatever is required on the field, is having fearless kind of attitude which is important for T20 cricket. और अगर आप शुभमन गिल जैसे प्लेयर को अपने स्क्वाड में रख रहे हो और ये बोल के जी ये तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है, टेस्ट, ओडीआई या T20 तीनों में ही आपकी टीम में फिट बैठता है, तो भाई उसको T20 खिलाओ। तो
नहीं खिलाना उसको रखना की क्या जरूरत है? संजू सैमसन, जस्टिस फॉर संजू सैमसन चल रहा है, आपने देखा होगा शायद, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। उसको ले गए, आप उसको खिला नहीं रहे हो। उमरान मलिक ले गए, खिला नहीं रहे हो। व्हाट एक्चुअली दे वांट, आई डोंट रियली नो, आई डोंट रियली एबल टू इमेजिन की सिचुएशन क्या है, चाहता क्या है भारतीय क्रिकेट बोर्ड भारतीय क्रिकेटर्स से, या भारतीय कप्तान क्या चाहते हैं, वो भी मुझे समझ में थोड़ा कम आ रहा है। ठीक है, भारत जीता वो एक अलग मसला है, समरी की बात अभी करेंगे हम। क्या आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं फैसले जल्दबाजी में लिए जा रहे हैं भारतीय क्रिकेट में? जी हाँ, एक छटपटाहट है और तमाम चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि अभी थोड़ी ये रस्साकशी चलेगी कि क्या हमें फैसले लेने हैं, और मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी ना कर दे भारत का थिंक टैंक, भारत का सिलेक्शन जो कमीशन है, जो सिलेक्शन टीम है, कहीं जल्दी ना कर दे। क्योंकि मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि जल्दी नहीं करनी चाहिए। और आज बयान भी आया है कल बीसीसीआई का और सिलेक्शन कमेटी का एक बयान ये आया है कि जो विराट कोहली को, रोहित शर्मा को कप्तानी दी गई, विराट कोहली को हटा के, और एक और वो था, एक और वो था कि उन्होंने एक किसी खिलाड़ी को, हाँ, यूजी चहल को या मोहम्मद शामी को 1 साल के बाद सीधे उतारा, तो उस पे भी विवाद हो रहे थे। तो सिलेक्शन कमेटी ने कहा है हमने जो कुछ किया बीसीसीआई के साथ मशवरा करके किया, और हमारे हर फैसले में बीसीसीआई ही सहमत थी। जी। बाय द वे, वो सिलेक्शन कमेटी जो है ना, वो भी बर्खास्त कर दी गई बीसीसीआई के द्वारा, आपको आइडिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल। नई सिलेक्शन कमेटी के लिए नामांकन मांगे गए हैं, लोगों ने अपने नाम भी दिए होंगे, और मैं समझता हूं भारत को एक ऐसी सिलेक्शन कमेटी की जरूरत है जो कम से कम बीसीसीआई से इतर फैसले ले सके, क्योंकि बीसीसीआई में जो लोग बैठे हैं बोर्ड में, वो बहुत अच्छे क्रिकेटर्स नहीं है। बाय द वे, आपको अगर एक आध को छोड़ दिया जाए, आपको आइडिया होगा, जैसे रॉजर बिन्नी है, बड़े अच्छे क्रिकेटर रहे अपने समय में, और उनके बेटे के साथ हालांकि हमेशा इनजस्टिस होता है, क्योंकि स्टुअर्ट बिन्नी एक जबरदस्त प्लेयर अभी भी है, मैं मानता हूं उन्हें। हालांकि अब वो कितने फिट रह पाते हैं, ये कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं, वो एक अलग मसला है, लेकिन अच्छे प्लेयर रहे, उनके साथ भी चीजें नहीं ठीक हुई। खैर, ये भारत की क्रिकेट की राजनीति, इस पर हम आएंगे बाद में, कभी फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि बीसीसीआई को कुछ कड़े फैसले लेने चाहिए, जो वो ले रहा है, लेकिन वो शायद वैसे नहीं जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि जैसे विराट कोहली के साथ हुआ, वैसे ही रोहित शर्मा के साथ होने की पूरी संभावना है, उनकी कप्तानी ले ली जाएगी। और एक बात और अभी उभर कर आई सामने, जो हम लोग कुछ दिनों पहले से लगातार बात करते आ रहे हैं, कि हर फॉर्मेट के लिए बीसीसीआई एक अलग टीम, एक अलग सपोर्ट स्टाफ और एक अलग कप्तान चाहती है। और मैं समझता हूँ ये कम से कम एक ऐसा फैसला है जो स्वागत योग्य है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि मतलब एक और भी चीज, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं। कई आर्टिकल पढ़ रहा था, महेंद्र सिंह धोनी को शायद अगला कोच नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया तेजी पकड़ रही है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, कितनी सही कितनी गलत मुझे इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। जितना मैंने कहीं पढ़ा इधर उधर, वो मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि इस तरह की चीजें जहन में है बीसीसीआई की, और अगर है तो कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आप उनको किस फॉर्मेट में एज अ कोच देखना चाहते हैं, ये बड़ी बात है। हाँ, आपकी प्रतिक्रिया। जी, देखिए, सबसे पहली बात, सिलेक्शन कमेटी की तो देखिए, सिलेक्शन कमेटी की जो बात है, वो सिलेक्शन कमेटी में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी जल्दबाजी है। और रही कप्तान की बात, कप्तान क्या भारत कोई भी टीम विश्व कप में भेजेगा, यदि वो विश्व कप नहीं जीता, क्या हर विश्व कप में कप्तानी चेंज होगी? क्या सबको एक विश्व कप ही दिया जाएगा केवल कप्तानी की हैसियत से? क्या कप्तान केवल विश्व कप ना जीतने पे बदल दिए जाएंगे? क्या कोच को बदल दिया जाएगा विश्व कप ना जीतने पे?
मुझे लगता है इनजस्टिस होना चाहिए। क्योंकि देखिए, बड़ी टीम है, हमसे बड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया, जिसने 4 शायद विश्व कप अपने पास रखे हैं, मगर इतने फेरबदल करना बहुत जल्दबाजी होगी। जैसे कि जब कोई पार्ट टाइम कप्तान बनता है तो वो मैच ज्यादा जीतता है बनिस्बत रेगुलर कैप्टन के, क्योंकि वो कभी कभी बनता है। लेकिन जब वो रेगुलर बनने लगता है तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी तकलीफ होती है। और ये भारत का कम से कम मेरे दृष्टिकोण से आइडिया सही नहीं। हाँ, जो तीनों फॉर्मेट की टीम आपने बताई, बिल्कुल सही आइडिया है। यदि तीनों फॉर्मेट की टीम बनती है तो मुझे लगता है राहुल द्रविड़ को एक दिवसीय का कोच होना चाहिए, वीवीएस लक्ष्मण को, या क्षमा कीजिएगा, राहुल द्रविड़ को टेस्ट क्रिकेट का कोच होना चाहिए, वीवीएस लक्ष्मण को ओडीआई का कोच होना चाहिए, और एमएस धोनी को यदि बनाया जाता है तो मैं T20 में यदि कोचिंग करे एमएस धोनी तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि ऑल फॉर्मेट में धोनी ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, यदि वो कोचिंग करे और इतनी जल्दी, यदि राहुल द्रविड़ को इतनी जल्दी हटा दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो बने ही थे, ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, और यदि उनको हटा दिया जाता है तो मुझे लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस है। रोहित शर्मा को पूरे कयास हैं कि हटा ही दिया जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि आप बार बार कितने कप्तान बदलेंगे? क्या केवल एक ही आपका नजरिया है केवल हम विश्व कप जीते? और यदि ऐसा है तो बड़ी बड़ी टीमें नहीं जीत पाई, ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत पाई, और भी टीमें नहीं जीत पाई, पाकिस्तान खुद नहीं जीत पाया खिताब, तो क्या हम माने? क्या हर विश्व कप के बाद टीम बदलेगी? हाँ बिल्कुल, ये मानसिकता नजर आ रही है भारतीय थिंक टैंक की, जो मुझे लगता है किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। हम क्रिकेट पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल यही सारी चीजें मैदान से बाहर हैं, वो तो चल रही हैं। क्योंकि माफ करेगा, क्योंकि क्रिकेट में क्या हुआ वो आप सब जानते हैं। हम समरी पर एक बार डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को हो सकता लगे कि जी ये क्या चल रहा है, बट ये एक बड़ा सीरियस डिस्कशन है जो आजकल सभी प्लेटफॉर्म्स पे आपको देखने को मिलेगा, सुनने को भी मिलेगा। तो क्यों ना हम उसी के साथ चले जो जमाना कर रहा है। अदरवाइज लोगों को लगता है ना कि शायद हम उस दुनिया से पीछे हैं। खैर, तो एक चीज आपने जो ठीक बोली कि एमएस धोनी को अगर बनाना है आपको तो T20 का ही कोच नियुक्त किया जाना चाहिए। राहुल द्रविड़ इज excellent option for test matches, sorry. And VBS Lakshman, yes, has a great experience. आप सहवाग को भी ला सकते हैं वनडे में, कोई या T20 में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छे जबरदस्त प्लेयर रहे अपने जमाने में, बढ़िया विचार रखते हैं वो। लेकिन फिर भी मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि आप विश्व कप ना जीत पाओ तो आप कप्तान बदल दो। ऑस्ट्रेलिया ने शायद 5 विश्व कप जीते हैं, यहाँ पे मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। 87, 99, 2003, 2007 एंड 2015। तो 5 विश्व कप उनके हाथ में है। और T20 में वो कभी विजेता बना? यस, एक पिछला वाला शायद जीता था ऑस्ट्रेलिया। हाँ, इससे पिछला जो हुआ था 2021 वाला, है ना? जी हाँ, क्योंकि ये बात हो रही थी कि क्या ऑस्ट्रेलिया रिटेन कर पाएगा, जो अक्सर होता नहीं है। और इंग्लैंड तो आप जान ही रहे हैं कि इस समय दोनों विश्व कप उन्हीं के हाथ में है, और होना भी चाहिए, वो डिजर्व करती थी। लेकिन उन्होंने भी कुछ बदलाव नहीं किए। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ जो इनकी ओडीआई सीरीज रही, उन्होंने क्या किया देखिए, जो T20 के उनके प्लेयर्स थे जो खेल रहे थे उनको रेस्ट दिया और ओडीआई के प्लेयर्स को ले आए। और ऐसा नहीं कि इंग्लैंड ने खराब खेला, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दोनों मैच जीत गई, एक अलग मामला है, बट फिर भी इंग्लैंड ने क्रिकेट अच्छी खेली। वो अपने टेम्पलेट पे है, और अगर आप अपने टेम्पलेट पे है तो 1-2 दिन आपका खराब आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत जिस टेम्पलेट पे है, मुझे लगता है बहुत 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 बदलाव की जरूरत है। तो आगे चलते हैं। तो समरी पर आप प्रकाश डालेंगे या फिर मैं बताऊं? जी जी, बताइए बताइए बताइए, बिल्कुल। हुआ ये कि 11:30 बजे भारतीय समय अनुसार, जो इंग्लैंड में करीब करीब 7 बजे का रहा होगा, न्यूजीलैंड में, माफ करिएगा, टॉस होता है, सिक्का उछलता है, वो न्यूजीलैंड के पक्ष में जा गिरता है, और उसके बाद वो डिसाइड करते कि जी हम बॉलिंग करेंगे। भारत को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया जाता है। भारत की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं होती जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। जल्दी विकेट गिर जाता है, सूर्य कुमार यादव को फिराना पड़ जाता है। वो आए और उन्होंने क्या किया वो हिस्ट्री है, और उस पर
बहुत ज्यादा डिबेट करने की जरूरत है नहीं कि उन्होंने क्या किया। ऋषभ पंत के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो सफल नहीं रहा। ईशान किशन को कुछ किस्मत का सहारा मिला, कुछ अच्छे स्ट्रोक्स खेले, 36 रन बनाए। श्रेयस अय्यर भी आए, वो भी 30 रन बनाकर चलते बने। दीपक हुड्डा, वॉशिंगटन सुंदर और हार्दिक पांड्या एक जबरदस्त बॉलर या जबरदस्त स्पेल का शिकार हुए। टीम साउदी ने उस मैच में हैट्रिक ली, आप सबको पता है। ये उनकी दूसरी हैट्रिक है, इससे पहले उन्होंने 2010 में ऑकलैंड में हैट्रिक ली, शायद इंग्लैंड के अगेंस्ट या कोई एक टीम थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। स्टेटिस्टिशियन कोई हमारे पास है नहीं जो लेखा जोखा रख पाए, तो हमें दोनों को ही रखना पड़ता है। तो ऑकलैंड में था ये, तो मुझे याद है 2010 में ली थी उन्होंने, और ये 2022 में भारत के खिलाफ। और 3 अच्छे बैट्समैन, ऐसी बात नहीं। वॉशिंगटन सुंदर आए, चले गए, हार्दिक पांड्या के जाने के बाद दीपक हुड्डा भी है, वो भी चले गए। तो ये अप्रोच, कम से कम आपके पास जब एक सेट बैट्समैन है सूर्य कुमार यादव जैसा जो 100 के ऊपर बैटिंग कर रहा है, तो आपको कम से कम ये सोचना चाहिए कि उसे स्ट्राइक दें आप, क्योंकि आप नए नए आए हैं, तो आपका काम केवल इतना है कि आप उसे स्ट्राइक दें। ठीक है, कई कई क्रिकेट पंडित ये कहेंगे जी कोशिश करनी चाहिए मैक्सिमाइज करने की, बट अगेन आप अभी पिच पर आए हो, और वहां की पिच कोई ऐसी वैसी पिच तो है नहीं कि आप जाते ही शॉट खेल लोगे, समझना होता है। और जो बल्लेबाज खड़ा है उसको स्ट्राइक आपको दे देनी चाहिए थी। ये बुद्धिमानी वाली क्रिकेट होती जो भारत ने नहीं की। थोड़े रन कम रह गए, अलग मामला है कि भारत ने सूर्य कुमार यादव की एक जबरदस्त पारी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, उन्हीं की केवल पारी की ही बात करूं, तो एक उन्हीं की पारी मात्र थी जो देखने लायक थी। 111-12 रन की वो जबरदस्त इनिंग, गेंदों में महज 51 गेंदों में 111 रन, और छक्के कितने लगाए? 5, आई थिंक 5 हाँ, या 5 छक्के ऐसे ही, ऐसे कुछ थे, और बढ़िया स्ट्राइक रेट। आखिरी 51 गेंदों में, बिल्कुल आखिरी 64 रन उन्होंने 18 गेंदों में बनाए थे, जो 350 के आसपास का स्ट्राइक रेट था उस समय उनका। तो वो ओवर सूर्य कुमार यादव को कायदे से खेलना चाहिए था, खैर नहीं हुआ। उसके बाद भारत ने 191 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही, जल्दी ही विकेट गिर गया। अर्शदीप को हालांकि विकेट नहीं मिला, लेकिन बाकियों को विकेट्स मिलते गए। दीपक हुड्डा, जी हाँ, चहल को 2 विकेट मिले, सिराज को 2 विकेट मिले, सिराज को 2, और सुंदर को और भुवी को 1-1, और 4 विकेट लिए दीपक हुड्डा ने। और विशेष बात ये रही, दीपक हुड्डा ने पहले स्पेल में 2 ओवर में 9 रन देके 1 विकेट लिया था, और वहीं आखिरी ओवर उन्होंने जो किया यानी 19वां ओवर, उसमें 3 विकेट उन्होंने लिए, लेकिन हैट्रिक नहीं हुई। हैट्रिक नहीं हुई, और 3 विकेट उन्होंने उस दौरान लिए, यानी 10 रन देके 4 विकेट लिए। 2.5 ओवर्स ओनली। जी, तो देखो ना, मैं यही तो आपसे बार बार कह रहा था विश्व कप के दौरान भी, कि भाई अगर आप दीपक हुड्डा को लेके आ रहे हो और आप उससे बॉलिंग भी नहीं करा रहे हो, तो फिर टीम में उनकी उपयोगिता क्या है? वो दरअसल मेरी समझ से कम परे था। तो अभी आपने देखा उनकी बॉलिंग एबिलिटी, ठीक है, आप ये कह सकते हो कि जी न्यूजीलैंड प्रेशर में था, तो शायद ये एक रीजन हो कि उन्होंने 3 विकेट ले ली, जल्दी जल्दी रन की जरूरत थी। लेकिन न्यूजीलैंड को भी ये पता था कि यहां से मैच वो जीतेंगे नहीं, तो वो बचा के खेल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी चीज तो थी नहीं कि उन्हें कोई ज्यादा अंक लेने हैं या फिर कहीं क्वालिफाई करना है। तो इसका मतलब ये आप समझें कि बॉलिंग अच्छी की दीपक हुड्डा ने, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तो था लेखा जोखा अगर भारत के तरफ से बात करें। बाकी इंग्लैंड की तरफ से अगर बात करें तो विकेटों का, न्यूजीलैंड की तरफ से माफ करेगा, विकेटों का जो खाता रहा वो किनका किनका खुला, जरा एक नजर डाल लेते हैं, उस पर आएंगे। पहले रामकृष्ण जी से जरा इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं, तब तक मैं न्यूजीलैंड की जरा विकेटों की जो संख्या है वो आपको बताता हूँ। जी, देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, दीपक हुड्डा एक प्रतिभावान क्रिकेटर है। कौन भूल सकता है वो आयरलैंड के खिलाफ वो शतक, जिसने दीपक हुड्डा को सही मायने में स्वर्णिम वापसी करने का एक मौका दिया। तत्पश्चात मैं अभी भी कहता हूं कि जब आप सबको ट्राई कर चुके हो, एक बार आप हुड्डा से भी ओपन करा लो। एक बार किया था उन्होंने ओपन, और बड़ी बढ़िया पारी खेली थी, और ओपन करा लो एक बार आप। या मुझे लगता है कि
एक चीज और हो सकती है कि जो दीपक हुड्डा है ना, उनको थोड़ा और टाइम दिया जाए। और ये ऐसा हीरा है, जितना भट्ठी में तपेगा उतना ही बेबाकी से सच में अपनी चमक बिखेरेगा। तो मैं फिर कहता हूं कि निसंदेह भारत ने अच्छी क्रिकेट खेली, न्यूजीलैंड ने भी क्रिकेट अच्छी खेली, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है उनकी। एक तरफ से विलियमसन लगे रहे, जुझारू खिलाड़ी हैं केन विलियमसन, लगे रहे, मगर नतीजे को अपने पक्ष में नहीं तब्दील कर पाए। बाकी भारत की बहुत अच्छी गेंदबाजी, यूजी चहल, आज पता लगता है कि विश्व कप में क्यों यूजी चहल को नहीं खिलाया गया। आज पता लगता है यदि यूजी चहल को खिला लिया होता तो भारत का इतना बुरा भारत का ये दौर ना आता और ये करारी हार ना भारत को झेलनी पड़ती। जी ठीक बोल रहे हैं। तो मैं वही कह रहा था कि ठीक है, न्यूजीलैंड ना फेयरलेस क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहा है, वो भी एक शेल से गुजर रहा है। भारत की तरह वो भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। केन विलियमसन के बल्ले पर गेंद उस तरह से आ नहीं रही थी, वो शायद अपने उस फॉर्म में नहीं थे जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। हालांकि अगला मैच वो शायद ना खेलें, और क्यों नहीं खेलेंगे पता है रीजन क्या है? जी नहीं एक्सक्यूज बड़ा पता। एक अजीबो गरीब आया है कि जी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, इस चक्कर में मैं शायद मैच ना खेल पाऊँ। तो अब ये डॉक्टर भी क्या करेगा? डॉक्टर की फीस बढ़ जाएगी और कुछ नहीं। डॉक्टर भी क्या करेगा, ये शील्ड में बनवा के लिखेगा जी कि मेरे अपॉइंटमेंट के लिए सोचो मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ कि भाई केन विलियमसन ने भारत से अपना मैच छोड़ दिया। तो डॉक्टर का तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन न्यूजीलैंड का नुकसान हो जाएगा अगर वो ये मैच नहीं खेलते हैं, तो जिसकी पूरी संभावना है कि शायद विलियमसन ना खेलें। तो एक तो पहले ही ट्रेंट बोल्ट गप्टिल नहीं है, और अब विलियमसन का जाना मैं समझता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हाँ, निश्चित तौर से न्यूजीलैंड की भी स्थिति कमोवेश भारत जैसी है कि न्यूजीलैंड के पास आप देखिए जो सलामी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय, फिन एलन और कॉनवे, डेरिल मिचेल को भी काफी नीचे बैटिंग करने आना पड़ रहा है, जो कि ज्यादातर मैंने देखा है उनको पारी की शुरुआत में आते हुए देखा है, नीचे बैटिंग करनी पड़ी है। नीशम के बैट से रन निकल नहीं रहे हैं, फिलिप्स के जहां तहां रन निकल रहे हैं, कुछ किस्मत के सहारे, कुछ कैचेस भी छूटे ग्लेन फिलिप्स के, लेकिन एक शानदार शतक विश्व कप में बनाया उन्होंने। ओवरऑल उनकी भी स्थिति कोई बहुत सुखद नहीं कही जाएगी, न्यूजीलैंड की भी। मैं खुद मानता हूं, मेरे को खुद लगता है कि जिस तरह से कॉनवे कुछ धीमी बैटिंग करते हैं, यदि डेरिल मिचेल को थोड़ा ऊपर खिला लिया जाए या डेरिल मिचेल से भी पारी की शुरुआत करा ली जाए तो न्यूजीलैंड और फेयरलेस क्रिकेट खेल सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे भारत में सूर्य कुमार यादव को एक जगह लाया जाता है, तो उस हिसाब से न्यूजीलैंड शायद ग्लेन फिलिप्स का इस्तेमाल करना चाहता है, और वो वही क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हालांकि उनसे कई बार होता भी है, फिन के ऊपर अभी भी भरोसा जता रही न्यूजीलैंड, हालांकि खाता नहीं खुला उनका। विलियमसन ने 60-61 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन 52-53 गेंदों पर थी। तो मैं समझता हूँ जहां 52-53 गेंदों पे एक लड़का दूसरी टीम का 111-12 रन बना के जा रहा है और आप 60-62 बनाओगे तो मैच आप नहीं जीतोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो वही हुआ, और कॉनवे भी को बहुत अच्छी इनिंग नहीं खेल पाए, 20-25 रन ही बना सकते हैं सके वो। हालांकि अच्छे प्लेयर्स में कोई डाउट नहीं है, बड़े जबरदस्त ड्राइवर हैं बॉल के, अच्छी ड्राइव लगाते हैं, अच्छी टेक्निक इस्तेमाल कर। तो मैं समझता हूँ जो ऐसे प्लेयर्स होते हैं ना, वो मिडिल ऑर्डर के लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं, जो जो बढ़िया टेक्निक से खेलते। देखो अगर आप ना एक फेयरलेस क्रिकेटर को बोलोगे कि आप भाई ना एंकरिंग का रोल ले लो, तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक जो एंकरिंग करता है उसको बोलोगे यार फेयरलेस क्रिकेट खेलो, तो वो के लिए वो भी मुश्किल है। इसलिए जो जैसे खेल रहा है उसको वैसे ही खेलने देना चाहिए, बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं। कई लोग कहते हैं कि जी समय के हिसाब से बदलना चाहिए, हाँ ठीक है, इट्स ऑल राइट। तो आपको ये देखना है ना कि आपके पास जो
अवेलेबिलिटी है, जो बेंच स्ट्रेंथ है आपकी, उसमें कौन कौन ऐसे लोग जो T20 ही खेल सकते हैं। अगर दुनिया की सारी टीमें अगर ये फॉर्मूला अपनाने लगे तो मुझे लगता है T20 और भी जबरदस्त हो जाएगा। अभी तो वो उसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ा फ्लेवर क्रिकेट है, तमाम मसालेदार चीजें होती है, बहुत सारी चीजें हैं। अब तो बीच में आप देखेंगे चेयर गर्ल्स, चेयर लीडर्स, ये वो दुनिया भर की आईपीएल में आप देख ही रहे हैं। अभी यूएई एक लीग शुरू ही कर रहा है, साउथ अफ्रीका एक लीग शुरू करने की बात कर रहा है, प्रिपरेशन चल रही है। भारत के किसी भी प्लेयर को वहां पर अलाउ किया जाएगा नहीं, सस्पेंस बना हुआ है। बीसीसीआई ने 2010-11 में एक कमेटी बनाई थी जिसमें यह फैसला हुआ था कि भारत के किसी भी प्लेयर को फॉरेन लीग में खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कारण ये बता दिया गया था कि जी फिर वो उनका जो नेशन है उससे मोह हट जाएगा और वो शायद लीग्स को ज्यादा प्रेफर करेंगे। जैसा कि अभी आपने हाल के दिनों में देखा कि मुस्तफिजुर जैसे लोग या फिर बोल्ट जैसे प्लेयर, जो बड़े जबरदस्त प्लेयर अपने जमाने में रहे न्यूजीलैंड के लिए, आज भी खेल रहे हैं। मतलब जमाना मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने ज्यादा तरजीह जो है, तवज्जो है कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दूसरी लीग्स को देना स्टार्ट कर दिया। वो ठीक नहीं है, आप देश को सर्वोपरि रखें, लेकिन यही एक रीजन है जो और फॉरेन लीग्स में भारत के किसी प्लेयर्स को आप खेलता हुआ नहीं देखते। कैसे देखते इस फैसले को कि भारत के किसी प्लेयर्स को वहां जाने की अनुमति नहीं होती? हाँ बिल्कुल, वो उस यदि आदेश की बात करें तो नहीं है, और मैं भी ये मानता हूँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारे जो देश का क्रिकेट है वो खतरे में है। और मुझे लगता है जहां देश की बात आए वहां देश को तवज्जो देनी चाहिए, जो कि कई खिलाड़ियों ने दी भी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस, वो हमारे आईपीएल में नहीं नजर आएंगे इस बार। और भी कई लोग हैं, क्योंकि देखिए मुझे लगता है लीग क्रिकेट से हट के एक देश का प्रतिनिधित्व करना होता है। हर किसी का सपना होता है कि वो अपने देश के लिए खेले, और यदि यदि कोई खिलाड़ी देश चाहता है वो उनकी तरफ से खेले, और यदि वो नहीं खेलते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस देश का भी दुर्भाग्य है कि इतने अच्छे क्रिकेटर होने के बाद भी यदि वो हमारे देश को वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस गफलत में कहीं कुछ चीजें पीछे ना छूट जाएं। इसीलिए बीसीसीआई का एक कड़ा, एक अहम और एक निर्णायक फैसला। बिल्कुल, मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ इस फैसले से। हालांकि कई प्लेयर्स को बीच बीच में रिलीज कर दिया जाता है कि वो किसी लीग में खेल सकते हैं। जैसे T10 वगैरह में युवराज सिंह गए थे कनाडा में, आपको याद होगा, और बड़ी जबरदस्त पारियां भी खेली थी उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, इवन इंग्लैंड वर्षों से भारतीय स्टार्स को मांगता आया है 2010 से अपनी लीग्स वगैरह के लिए। अफ्रीका भी कहता रहा, यूएई ने भी मांग की है, और अफ्रीका में तो भारत के 3 जो आईपीएल ओनर हैं उन्होंने टीम भी खरीद ली है। लेकिन उसमें भारत के प्लेयर्स होंगे कि नहीं, ये सस्पेंस का सवाल है। मैं समझता हूँ शायद अलाउ नहीं किया जाएगा भारतीय प्लेयर्स को। खैर, आज मुझे लगता है काफी है। क्या सवाल बाकी रह गया? जी हाँ, सवाल भी बाकी, और थोड़ी सी चर्चा हमें कल नेपियर वाले अच्छा हाँ बिल्कुल, ये करनी चाहिए। कल भी एक मैच है। जी हाँ, कल नेपियर में ही खेला जाएगा एक मैच। वो मैच खेला जाएगा नेपियर में, और नेपियर से गौतम गंभीर का बहुत पुराना रिश्ता है। वो नेपियर टेस्ट बचाने के लिए गौतम गंभीर को बरसों पहले से याद किया जा रहा है, बरसों तक याद किया जाएगा। मैं जब भी नेपियर का नाम लेता हूं तो मेरे जहन में गौतम गंभीर की वो मैच बचाऊ वो पारी याद आती है, जो सच में बड़ी बेहतरीन पारी थी। और हाँ, मैं नेपियर के बारे में बात करूंगा कि आपको क्या लगता है, नेपियर T20 में क्या न्यूजीलैंड कुछ कर सकता है? क्या न्यूजीलैंड पलटवार करेगा, या क्या भारत 2-0 से ये सीरीज को अपने नाम करेगा? देखिए, यहां से केवल एक टीम है जो श्रृंखला हार सकती है, और वो है न्यूजीलैंड। क्योंकि भारत यहां से कम श्रृंखला हारेगी तो नहीं। तो भारत को कम से कम चाहिए कि वो फेयरलेस क्रिकेट खेले। बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है चेंज करने की कुछ भी।
आप जिस टेम्पलेट पे खेल रहे थोड़ा सा उसको बदल सकते हो, रन को थोड़ा तेज बनाओ। आपने सवाल न्यूजीलैंड के लिए पूछा है, बिल्कुल न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो पलटवार करना जानती है और भारत से वैसे भी बड़ी पुरानी और कड़वी यादें जुड़ी रही हैं भारतवासियों की न्यूजीलैंड से। कौन भूल सकता है वो सेमीफाइनल 2019 का, आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो और इस बार भला हो कि भारत के ग्रुप में नहीं था न्यूजीलैंड, वरना हो सकता है कुछ और भी उलटफेर होता। तो एक अच्छी चीज थी भारत के दृष्टिकोण से। तो मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड अच्छी टीम है, जरूर पलटवार करना जानती है और करेगी भी। तो भारत को हल्के में नहीं लेना चाहिए, तैयार रहना चाहिए अपने सभी अस्त्र शस्त्र के साथ। यहाँ केवल बॉल और बैट और स्टंप ही हैं, बाकी कुछ गोली और बंदूक की बातें नहीं हो रही हैं। तो भारत को तैयार रहना चाहिए। और भारत का ब्रह्मास्त्र कौन है इस समय? जी, सूर्य कुमार यादव। इसके अलावा तो कोई नजर ही नहीं आता। द स्काई, सूर्य कुमार यादव। यस, निसंदेह। एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, मुझे लगता है टीम भारत को यही खिलानी चाहिए, इतना भारत को चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तो एक मैच ही बचा है। तो मुझे लगता है ज्यादा परिवर्तन नहीं करने चाहिए और दीपक हुड्डा को ऊपर खिला के ऋषभ पंत को नीचे खिला के एक बार और टेस्ट कर लेना चाहिए। हाँ, इस बात से मैं आपकी इत्तेफाक रखता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं। आप ऑर्डर्स में फेरबदल कर सकते हैं, वो आपके हाथ में हमेशा होता है, चाहे मैच की स्थिति कैसी भी हो। कई बार फ्लोटर को भेज दिया जाता है, जैसे आपने नवाज को देखा होगा, शादाब को देखा होगा पाकिस्तान के लिए खेलते हुए। तो वो एक अच्छी चीज है, वो कला है, वो आपको आनी चाहिए। एक कप्तान और एक कोच होने का। वहाँ विवियस लक्ष्मण है ना न्यूजीलैंड में भारत के साथ फिलहाल? जी। अच्छा हाँ, उनका एक ट्वीट भी आया था, वो उस मेमोरी को चेरिश कर रहे थे, गंभीर वाली जो आपने बताई है। 11 घंटे शायद खड़े रहते क्रीज पे। वो जबरदस्त इनिंग थी वो। भारत के लिए टेस्ट मैच बचाना न्यूजीलैंड जैसी पिच पर मुश्किल काम था, उन्होंने किया। मैं समझता हूँ भारत कम से कम कल का दिन ना उनको डेडिकेट करे भारत, जीतते तो, क्योंकि वो एक यादगार लम्हा था हमारी क्रिकेट हिस्ट्री में। आई रियली होप इंडिया will go on and win this series by 2-0. But again, New Zealand is a very tight team. Don't forget, they have defeated you in semi-finals of 50-50 and so many occasions in T20 World Cups as well. In the previous World Cup, I think 2021, when New Zealand defeated India. और वो डिफीट ही शायद बाहर होने का कारण बनी थी भारत के। पाकिस्तान से वैसे ही हार गया था, फिर न्यूजीलैंड रही सही, जो कसर थी ना वो न्यूजीलैंड ने पूरी कर दी थी। तो भैया बदला लेना है। रिवेंज का मतलब ये नहीं कि आप किसी को बल्ला उठा के मारने लगो, आप अच्छी क्रिकेट खेलो, जीत के आओ। दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का भी ओडीआई यस कल ही है। जी हाँ, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की श्रृंखला चल रही है। ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे है, कुछ हो नहीं सकता उसमें। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। 8:50 से मैच खेला जाएगा। सोनी 5 स्पोर्ट्स पर उपलब्ध होगा, सोनी लाइव मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं। अंत में सवाल पे हम आते हैं। सवाल कुछ इस तरह से है कि अब तक जितनी भी लीग्स चल रही हैं, जितनी भी लीग्स हुई हैं, या जितने भी क्रिकेट के मैच आयोजित किए गए हैं, लीग या अंतरराष्ट्रीय, उन मैचों में किसी भी एक मैच में व्यक्तिगत स्कोर किस बल्लेबाज के नाम पे अंकित है, यानी किस बल्लेबाज ने सभी तरह के मैचों, यहाँ टेस्ट मैचेस की बात नहीं कर रहे हैं हम। जी नहीं, सभी तरह के मैचों को मिला लें हम, एक दिवसीय, 2020, सिवाय टेस्ट मैच को छोड़ के, और उनमें लीग क्रिकेट भी शामिल है, यानी लीग क्रिकेट को भी हम मद्देनजर रख रहे हैं। तो सर्वाधिक रन्स किसी भी एक पारी में किस बल्लेबाज ने बनाए हैं, आपको इसका जवाब देना है। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाना है और अपने जवाब को टाइप करना है और हमें भेज देना है। आपको हम, यानी ये जो टूर्नामेंट चल रहा है भारत और न्यूजीलैंड का, 3 2020 और 3 एक दिवसीय, इसके बाद हम आकलन करेंगे किसने हमारे कमेंट बॉक्स में सबसे ज्यादा जवाब दिए हैं और सबसे ज्यादा जवाब किसके सही हैं। जिसके सबसे ज्यादा जवाब सही होंगे उनको एक आकर्षक पुरस्कार रेडियो टशन की तरफ से दिया जाएगा।
तो आप देर ना करते हुए फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करें। Okay, I can repeat the question once for you all if you are not able to understand in the words of Ramkishan ji, though he is explained very beautifully, so you'll be able to understand easily. But again, for the lovers who are from South India or any other part of the country, who is holding the highest run scored record as an individual in all cricket, excluding Test cricket? Test cricket is not included. You can, expect one-day matches, international or domestic, list A, first class, everything. Ranji Trophy, Vijay Hazare Trophy, everything. But the Test cricket is not included. 5-day I'm talking about, not included. A 4-day it can also not include because रणजी ट्रॉफी में भी कई बार अलग अलग फॉर्मेट्स, अलग अलग चीजें होती है, तो रणजी ट्रॉफी को भी आप हटा सकते हैं, इसमें 3-4 दिनों के मैचेस होते हैं, तो आप इनको हटा दीजिए। बाकी आपको बताना है कि किस बल्लेबाज के पास है, तो हाल ही में रिकॉर्ड बने हैं, आप बता सकते हैं। क्रिकेट को अगर फॉलो करते हैं तो एक हिंट मैंने दे दिया और मुझे लगता है इतना काफी है आज इस शो को समाप्त करने के लिए। जी हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।